एज वी ऑल नो कि हम सब लोग अभी यहाँ साथ में हैं जस्ट टू डिस्कस about this very healthy water and why this water is very healthy and what are the properties of this water which makes it healthy. तो सबसे पहले तो आई लाइक टू स्टार्ट दिस ऑफ कि this mechanism was founded in Hamza and ended up in our kitchen. That is so because ये एक छोटी सी स्टोरी से मैं शुरू करता हूँ आपके साथ में कि हमजा वैली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक छोटी सी वैली है जहां पे for 6 decades Dr. Henry Konda lived and found out why the people of Hunza Valley live for 140 years. The average age of Hunza Valley people is 140 years. तो वहाँ किसी भी तरीके का कोई मेटाबॉलिक डिजीज या लाइफस्टाइल डिजीज एग्जिस्ट नहीं करता है. तो ये सारा रिसर्च उन्होंने 60 साल तक किया और उसके बाद उन्होंने ये पाया कि वहाँ का जो पानी है दैट वाटर हैज समथिंग डिफरेंट इन इट. This is the main reason the people live so healthy and they remain so young till the last of their life. तो उसके बाद में when he got the Nobel Prize for discovering these properties in water, the Japanese scientist pursued it further to make it available through a device which can be installed in our kitchen. So they made this device in 1968 which is called as water ionizer. It is basically electrolysis unit. तो इसके अंदर में फिर उन्होंने ये 6 साल तक 1968 से 74 तक they have performed different tests on plants and animal and they found out कि जो plants animals healthy थे उनकी health retain रही और जो plants animals जिनमें health का अभाव था जो किसी ना किसी तरीके से बीमार थे तो उनमें बहुत फायदा उन्होंने पाया. And then these machines were being installed in Japanese hospital. तो 1974 से लेकर के 1994 तक for another 20 years these machines were installed in Japanese hospitals, and for these long 20 years when these machines were installed and the water was used under the observation of doctors to the different kinds of patients, they noticed that for each and every ailment or health hazard they were finding out a great difference in the patient's health. And after these 20 years survey on different kinds of patients with different illnesses, in 1995, Japanese government made an association which promoted this device to the local public of Japan. This water is really very safe and very healthy for the mankind to stay healthy. And also for the cure for many things, because ultimately our body cures itself and this water is the main helping hand in that. तो फिर उसके बाद से since 1995 this product was installed for the domestic use. तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है कि ये हमजा घाटी के सारे रिसर्च से लेकर के then we moved on to this, और इसको आगे हम देखते हैं भी what actually this process is. इससे हो क्या रहा है, ये क्या प्रोसेस है जो हमारे पानी के अंदर में ऐसी प्रॉपर्टीज ले आता है which makes our living healthy and happy. तो उसके लिए I would like to share this presentation with you all. प्रीति आप मुझे कंफर्म कीजिएगा, is my screen visible to you? अभी तक तो नहीं गौरव. Actually I have made you host और आप ही स्क्रीन शेयर कर सकते थे, तो आप प्लीज मुझे फिर से होस्ट बना दीजिए. Done, Gaurav. Okay, Preeti. Now you can see my screen. Yes, Gaurav, we can see. Okay, okay, sir. तो अभी जो हमने सब डिस्कस किया कि वो हेल्दी वाटर जो हमजा का कोर फाउंडिंग था और उसके बाद में
Japanese company which introduced this machine. That company's name is Energic, Enagic. Energic is the parent company name, and the water which we get from this machine is called as Kangen water. So this is the patent name of the company. This water is called Kangen water, and scientifically this water is termed as ERW, electrolyzed reduced water. So now moving on to the mechanism. This is the mechanism which we have in this machine. There are platinum plates which are then being galvanized with platinum, और जब पानी इसमें से पास ऑन किया जाता है तो हमको दो हिस्सों में अलग अलग पानी मिलता है, और वो जो दो अलग अलग हिस्सों में पानी मिलता है तो द वाटर which is called as miracle water or Kangen water or ERW, उसमें there are three main properties जिसकी वजह से ये पानी हमारे लिए बहुत हेल्दी है. और पानी के ऊपर वी आर डिस्कसिंग बिकॉज आवर बॉडी इज 70% वाटर. तो हर अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग परसेंटेज है वाटर का, एंड वाटर बीइंग द हायर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी, इट हैज अ वेरी मेजर रोल टू प्ले. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे सारे न्यूट्रिशन की सप्लाई भी पानी करता है, हर एक सेल तक हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई भी पानी देता है, और हमारी बॉडी को भी डिटॉक्स करता है. तो अगर पानी का इतना ज्यादा काम है हमारी बॉडी में, तो डेफिनेटली इट शुड बी द हेल्दियर वाटर रादर देन बीइंग क्लीन वाटर. नाउ मूविंग अहेड, आज की डेट में हम जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से गो थ्रू कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ थ्री बेसिक स्ट्रेस. द वेरी फर्स्ट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंड द सेकंड इज एसिडिक स्ट्रेस, एंड द थर्ड इज डिहाइड्रेटिंग स्ट्रेस. तो ये तीनों तरीके के स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए जो इस पानी की तीन प्रॉपर्टीज है, दे आर वेरी इफेक्टिव. तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए दिस वाटर इज एंटीऑक्सीडेंट इन नेचर. एसिडिक स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए दिस वाटर इज एल्कलाइन इन नेचर. और हाइड्रेटिंग स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए दिस वाटर इज वेरी थिन इन नेचर, व्हिच इज टर्म्ड एज माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर. तो दीज आर दी थ्री प्रॉपर्टीज. और अभी हम इसको थोड़ा विजुअल भी देख लेते हैं, थोड़े टेस्ट के साथ में भी देख लेते हैं. What is this all about? Moving on to the very first property, the water is antioxidant in nature. तो antioxidant को समझने के लिए हमको पहले ये जानना पड़ेगा what is oxidation. Oxidation basically is aging. Anything which is born on this earth has to die one day. So the whole process is called as oxidation, or we can term it aging. और scientifically इसमें हम ये भी कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन छिनते चले जाते हैं तो ऑक्सीडेशन होती चली जाती है. इट इज एज सिंपल, जैसे हम एक सेब को काटेंगे तो थोड़े समय में वो लाल हो जाएगा, तो दिस शोज कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया है. लोहे की कीलों को पानी में डालेंगे तो जंग लग जाएगी, विच शोज कि लोहे का ऑक्सीडेशन हो गया है. सिमिलरली अ स्मॉल बेबी इज बॉर्न एंड अ ओल्ड पर्सन डाइज. दिस इज द ऑक्सीडेशन साइकिल ऑफ आवर लाइफ. Generally we need to be oxidized in 140 years as per the nature, as per the biological age of human body. But what is happening कि वो एवरेज एज थोड़ी कम होती चली जा रही है. रीजन बीइंग हमारी जो एजिंग है वो बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है. वो एजिंग तेजी से बढ़ने का कारण ये है कि सर हमको सर्वाइवल के लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है, एयर, वाटर एंड फूड, एंड थ्री ऑफ देम शुड बी वेरी हेल्दी. पर हम लोग अभी वो तीनों चीजें हमको हेल्दी ना मिल करके दे आर गेटिंग एडल्टरेटेड एंड दे आर गेटिंग डिटोरेटेड डे बाय डे. तो अभी इन सब चीजों से हमको ये पानी कैसे बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वो हम देखते हैं कि नॉर्मली तो हम सबसे ज्यादा पूरे दिन में पानी का इस्तेमाल लेते हैं. हम खाना भी पानी में बनाते हैं और पीने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा. तो कितना अच्छा हो कि ये जो एंटी एजिंग का प्रॉपर्टी है हमको हमारे पानी से मिल जाए. So we can get this property from our water, which is termed as anti-aging. और इसको मेजर करने का जो क्राइटेरिया है that is ORP. ORP is oxidation reduction potential. इसकी रीडिंग मिलीवोल्ट्स में रहती है. अगर रीडिंग पॉजिटिव साइड पे है तो दिस शोज कि ये हमारी एजिंग को तेज करेगा. रीडिंग नेगेटिव साइड पे है तो दिस शोज कि हमारी एंटी एजिंग की प्रॉपर्टी हमको देगा. अभी ड्यूरिंग दिस कोविड वी हैव लिसन्ड अ लॉट कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको एंटी एजिंग सब चीजें चाहिए. जैसे विटामिन सी हम लोगों ने बहुत लिया है, हम लोगों ने ग्रीन टी, कॉड लिवर ऑयल, ये सारे के सारे एंटी एजिंग के सोर्सेज हैं. नॉर्मली हमने आज तक देखा है कि विटामिन सी एक एंटी एजिंग का मेन सोर्स, इसको हम लेकर के चलते हैं. पर एक पानी भी हमको एंटी एजिंग की प्रॉपर्टी दे सकता है. जैसे वो हमजा घाटी का पानी एंटी एजिंग है. जैसे कि हमारे गोमुख जहाँ से गंगा जी की उत्पत्ति होती है वहां का पानी एंटी एजिंग है.
ऐसे ही मक्का के आवे जमजम का पानी एंटी एजिंग है। तो हम इसको लाइव भी देख लेते हैं। तो गोइंग ऑन टू द लाइव कैमरा, अभी हम इसको देखते हैं व्हाट आर दी। मैंने अभी ना सर 4 ग्लासेस लिए हैं जिसमें हम 4 अलग अलग तरीके के पानी लेंगे एंड वी विल चेक वेदर दीज वाटर्स आर एंटी एजिंग इन नेचर और दे आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। टू मेजर दिस आई हैव दिस ORP मीटर विद मी, जिसमें रीडिंग हमको पॉजिटिव आएगी तो दिस शोज कि दिस पर्टिकुलर लिक्विड इज oxidizing, this water is taking us towards aging, and if the reading is on to the negative side, then this shows that this water has the anti-aging properties. Plus is good, bad for us, and minus is good for us. The more the plus is, the more the oxidizing, the more the minus is, the more the anti-aging. तो इसके लिए सबसे पहले सर what we do, we take this bottle of cold drink. So one of the liquid we take is of cold drink, और एक हम लेते हैं सर ये नॉर्मल हमारे फिल्टर्ड वाटर, जो पानी हम लोग हमारे घर में RO से या फिल्ट्रेशन प्रोसेस से लेते हैं। एक सैंपल सर हम उसका ले लेते हैं। एंड मूविंग ऑन टू द थर्ड सैंपल, आई एम टेकिंग दिस बॉटल्ड वाटर विद द ब्रांड नेम ऑफ एक्वाफिना। हम मार्केट में रहते हैं तो मोस्टली किनले, एक्वाफिना, बिस्लेरी इन्हीं पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो द थर्ड सैंपल आई विल बी टेकिंग ऑफ दिस एक्वाफिना, and the fourth sample I'll be taking of this Kangen water, the water which we are discussing now. देखिए अभी हमने चारों के चारों सैंपल्स ले लिए हैं और हर सैंपल के पीछे मैंने उसकी बॉटल रख दी है। and now we are going to measure the ORP of every liquid, whether it is on to the positive side or it is on to the negative side, which will let us know whether this liquid is moving us towards the aging or it is giving us anti-aging properties. This is cold drink, sir. Can you see this? Can you read it, Kamal sir? Yes, we can read it, Gaurav. प्रीति इसकी रीडिंग कितनी आ रही है अभी? 595, 67, 98, 99, 600 प्लस में है गौरव। ये प्लस में 600 है। दिस शोज कि दिस इज वेरी मच ऑक्सीडाइजिंग, दिस इज नॉट गुड एट ऑल फॉर अस। नाउ मूविंग ऑन टू दिस आर फिल्टर्ड वाटर। This is 400 plus. This is 400 plus. This again shows this water is also oxidizing for us. Now moving on to this bottled water. This is again on to the positive side, Preeti. Yes, this is 446 near. And now going towards the Kangen water. Abhi reading is positive or it is on to the negative side? It is negative side, Gaurav, minus 725, 30, 47, 40, 50, 67, 72, 85, 795, 800. So this 810. This negative symbol shows that this water is antioxidant in nature. You can call it और antioxidant. थोड़ा सा टिल्ट करो क्योंकि माइनस का साइन थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल आप ठीक है। और अगर मैं इसको फिर से हमारे ड्रिंकिंग वाटर में डाल देता हूँ, नॉर्मल फिल्टर्ड वाटर में, then again it has moved on to the positive side, Preeti. Yes, this is again coming to 200 plus, 240, 249, 57, 65, और अगर मैं 71. फिर से इसको कैंगन में डालता हूँ तो again it has moved towards negative side. Yes, Gaurav. 761, 68, 60. Minus is good for you and plus is bad for you. This negative shows that this water has electrons to donate to your body. This water is anti-aging. This water is antioxidant. This water is electron surplus. This water is electron donor. This is the very first property of a healthy water. अभी हम अगर इस पानी के अंदर में लोहे की कीलें डाल के रख देंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लोहे में रस्टिंग नहीं आएगी।
The reason is this water is also electron donor and iron is also electron donor. जब दोनों डोनर होंगे तो उस केस के अंदर में ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन की स्नैचिंग होगी नहीं, तो रस्टिंग नहीं होगी. और अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, वेरी ओल्ड एंड अराउंड सेइंग दैट सेज बिकॉज एप्पल वाज एन एंटीऑक्सीडेंट. एक्चुअली एप्पल का जो छिलका होता है जिसको आजकल हम पील ऑफ कर देते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. And this 1 liter of water is equivalent to the antioxidant given by 83 kgs of apple. Blueberries are very good source of antioxidants. 5 kgs blueberry जितना antioxidant हमको 1 लीटर पानी देता है. And green tea is also a good source of antioxidant. 65 cups of green tea is equivalent to the 1 liter of water. So this is so enriched antioxidant. और पानी का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, विच इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर बॉडी. मैम जैसे आप कुछ डॉक्टर्स भी हैं इसमें, तो वो थोड़ा टर्मिनोलॉजी मैं आपको बोल देता हूँ कि जो हमारा फ्री रेडिकल है दैट इज द बेसिक रीजन फॉर आवर एजिंग, जिसको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी बोलते हैं, ROS. और ROS को नेगेट करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन ही चाहिए. एंड दिस वाटर हैज अ वेरी हायर पोटेंशियल to donate electrons because this water is very much electron rich. तो ये हमारे ROS को नेगेट करता है, जिसका मतलब ये हमारी एजिंग को नेगेट करता है. That's why this water is anti-aging in nature. Now moving on to the second property of healthy water. Nowadays we are majorly suffering through NCDs, that is non-communicable diseases या metabolic disorders, या हम उसको lifestyle disease भी बोल सकते हैं, जैसे कि एसिडिटी, सोराइसिस, एक्जिमा, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज, लिवर चैलेंजेस, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ इश्यूज, सिस्ट, गाउट, माइग्रेन, कैंसर्स, ट्यूमर्स, सिरोसिस. तो ये सब के सब जो मेन चैलेंजेस आजकल हम अपने लाइफस्टाइल में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं these all happens because of the acidic environment of our body. हमारा आयुर्वेद तो बहुत सालों से कहता है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें 80% का हमारा डाइटरी शुड बी एल्कलाइन इन नेचर एंड ओनली 20% शुड बी एसिडिक. लेकिन आज के लाइफस्टाइल में वी आर हैविंग मोर ओवर प्रोसेस्ड फूड, मोर कुक्ड फूड्स. तो ये सारे के सारे बहुत एसिडिक नेचर के हैं और इनका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो भी बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है हमारी बॉडी के अंदर में. और आयुर्वेदा ट्रीटमेंट जो है, इट इज बेसिकली नॉट अ ट्रीटमेंट. आयुर्वेदा इज अ लाइफस्टाइल जो क्षार बेस्ड है, जो एल्कलाइन बेस्ड है, कि आपके बॉडी के आप जो pH है should be a slightly alkaline so that it can stay healthy, so that the immune system of our body can perform to its fullest. तो अभी हम देखते हैं कि सर सारा दिन हम जो खा रहे हैं वो तो सब एसिडिक खा रहे हैं, मोर और लेस वी आर हैविंग ऑलमोस्ट कुक्ड फूड, और एल्कलाइन के नाम पे हमारी डाइट में कुछ भी नहीं है. और पानी भी जो है वो हम लोग एसिडिक पी रहे हैं, जिसकी वजह से एसिडिक बिल्डअप बहुत ज्यादा हो रहा है बॉडी में, which is again leading us to different kinds of ailments, सारे lifestyle disorder जो हम आजकल गुजर रहे हैं जिनसे. And in 1923 there was a Dr. Otto Warburg, जिन्होंने इस चीज का रिसर्च किया कि no disease including cancer can survive in alkaline environment, whereas all the metabolic disorders including cancers they occur in acidic environment. तो हम ज्यादा acidic खाएंगे तो ultimately our body will be on to the acidic side. तो उसको प्रेजेंट करने के लिए वी ऑल नो कि जो एसिडिक और एल्कलिनिटी है इसका मेजरमेंट इज डन इन pH. pH इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. इसका चार्ट जो है वो 0 से 14 तक का होता है. 7 इज न्यूट्रल. 7 से नीचे जाएंगे तो इट इज एसिडिक, और 7 से ऊपर जाएंगे तो इट इज एल्कलाइन. तो मैं ये चार्ट भी रख देता हूँ टू मेक यू नो. आप लोगों को चार्ट विजिबल है? Yes, Gaurav. Now this I have universal pH indicator. We can test this with litmus paper also, and with this universal pH indicator also. ये हमको शेड आ जाएगा पानी में कि what is the pH of which water. तो सबसे पहले तो I'll put these drops in this filtered water. And now I'll put this in this bottled water.
सर आप थोड़ा सा शेड और प्रीति आप भी थोड़ा सा हेल्प करेंगे शेड और पीएच बताने में। ये फिल्टर्ड वाटर है हमारे आरओ का। ये एसिडिक है गौरव, नियरली 4.5 to 5 इस शेड का। ओके, एंड दिस इज नाउ बॉटल्ड वाटर। दिस इज नियरली सेम 5 to 6 की रेंज में। तो एसिडिक खा रहे हैं, एसिडिक पी रहे हैं, तो अल्टीमेटली एसिडोसिस की प्रॉब्लम आनी ही आनी है हमको। नाउ मूविंग ऑन टू is this alkaline or acidic? Yes, alkaline Gaurav, it is alkaline. And this cool drink? This is highly acidic Gaurav. So the chart is in front of you. You can see, you can measure the pH. This is cool drink, highly acidic. Roughly PT 2.5 के आसपास में होगा ये. Exactly. And this is filtered water. You mentioned it 4.5 to 5. G. This is bottled water. You mentioned it from 5 to 6. G. This is on to the alkaline side. That is to 9.5. G. So abhi these all are in front of you, and it is you being better judge कि आपको कौन से वाला पानी पीना चाहिए। Moving further, moving forward, अभी अगर हम इस पानी को पीना शुरू करते हैं तो slowly and slightly our body starts going towards alkaline side, and a few people have questions कि अगर हम बाहर जाएंगे और दूसरा पानी पिएंगे तो कहीं हमारी बॉडी उसको एडजस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बाहर जाएंगे तो इसी पानी को पीना प्रेफर करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि ना डे और टू योर बॉडी गेट्स टुवर्ड्स एसिडिक साइड। गौरव, अगर आपके पास में कोई व्हाइट पेपर है वो पीछे रख देंगे, दैट विल बी बेटर, यू नो, वो आ जाएगा। अभी इट इज फीजिबल प्रीति? यस, but we all have to leave this cold drink because this can ruin our body in a single go. This can ruin our body in a single. Same as well here. So say no to these aerated drinks, these cold drinks. These are not at all good for our health. and say yes to the 9.5 Kangen water. Yeah. Now moving on to the third property of healthy water. नॉर्मली हमारा जो पानी होता है ना वो क्लस्टर में होता है, गुच्छे में होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला इज H2O, पर सिंगल H2O एग्जिस्ट नहीं करता है। H2O बहुत सारे H2O मिलकर के लिक्विड फॉर्म में आते हैं। दिस वी नो द पीपल विद द साइंस बैकग्राउंड कि पानी का एक क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है। जैसे अंगूर गुच्छे में मिलता है, अकेला नहीं मिलता है। सिमिलरली पानी अकेला नहीं मिलता है, वो गुच्छे में होता है H2O के, डिपेंडिंग ऑन टू द डिफरेंट आयनिक इम्प्योरिटीज अवेलेबल टू दैट वेरी सोर्स। तो नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं, दिस वाटर, फिल्टर्ड वाटर और दी बॉटल्ड वाटर, इसका जो क्लस्टर है वो 15 से 25 मॉलिक्यूल का होता है। तो दिस वाटर इज वेरी थिक इन साइज, एंड कंपेयरिंग टू दिस वाटर इज वेरी थिन इन साइज बिकॉज इट हैज ओनली 5 to 6 मॉलिक्यूल्स का क्लस्टर। और उसको प्रेजेंट करने के लिए आई हैव दिस जीरा विद मी। तो अगर पानी भारी होगा तो पानी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कम होगा, पानी अगर पतला होगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन विल बी ऑन टू द वेरी हायर साइड। और डॉक्टर पीटर एग्रे 2003 के नोबेल प्राइज विनर हैं जिन्होंने इस चीज को प्रूव किया। द वाटर विद द 5 to 6 मॉलिक्यूल क्लस्टर्स एब्जॉर्ब्स 95% in your body, whereas the filtered tap or bottled water is being only absorbed 15 to 25% in your body. तो देखिए, अगर पानी का एब्जॉर्प्शन ही कम होगा तो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, सब चीज की सप्लाई हमारे सेल तक पानी के माध्यम से जानी है तो वो भी कम जा पाएगी, और हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी सिर्फ पानी के माध्यम से किया जा सकता है, वाया यूरिन, मोशन, वॉमिटिंग और स्वेटिंग। तो वो चीज भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो दैट इज व्हाई द क्लस्टर ऑफ वाटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि वो बहुत छोटा होना चाहिए। नाउ आई विल बी पुटिंग सम दिस
जीरा in one bowl and a same उतनी अमाउंट का लगभग जीरा in other bowl, ये हम नॉर्मली घर पे भी करते हैं। हमने देखा है कि जीरे का पानी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो हम लोग ओवरनाइट इसको रखने की कोशिश करते हैं। तो एक में तो आई विल बी पुटिंग दिस फिल्टर्ड वाटर जो हम रूटीन में लेते हैं, और एक में आई विल बी पुटिंग दिस हमारा कैंगन वाटर। तो देखते हैं किसकी एब्जॉर्प्शन जो है इज ऑन टू द हायर साइड। अभी आई हैव नॉट स्टर्ड येट, लेकिन प्रीति विजिबल डिफरेंस आपको दिखने लग गया होगा मुझे लगता है। विजिबल डिफरेंस है, और ये टेस्ट हम अपने घर पे भी कर सकते हैं। हम अपने फिल्टर वाटर में इस तरीके का टेस्ट कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि क्या हमारा पानी जो है। अभी मैंने प्रीति इसको स्टर नहीं किया है, तो आप डिफरेंस देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पे? बिल्कुल, बहुत बिल्कुल डिफरेंस है गौरव। तो मैं इसको स्टर भी कर देता हूँ। दिस इज ओनली फिल्टर्ड वाटर एंड दिस इज आवर कैंगन वाटर। तो दोनों में डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। इसमें जीरे का सर अभी आ गया और उसमें अभी तक नहीं आया है। द रीजन इज दिस कि ये पानी जीरे के पोर्स में से पास ऑन नहीं हुआ है जो फिल्टर्ड वाटर है, और जो कैंगन वाटर है क्योंकि ये बहुत बारीक पानी था तो ये बहुत अच्छे से पास ऑन हो गया जीरे में से, which shows this water is more absorbable in our body rather than any other tap, bottled or RO or filtered water. So this is the third property of this healthy water. This water is because very thin in size, so the absorption is onto the very higher side. Now moving ahead, these are the three properties of a healthy water. The water which seems to be very clean, in this illustration we have seen it is not healthy. So being clean is not the statement that it is also healthy. तो पानी अगर हेल्दी होगा तो आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होगा, आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर आपके सेल्स को मिलेगा, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगा और डिटॉक्स भी अच्छे से होगा, तो डेफिनेटली योर बॉडी टेंड टू हील इटसेल्फ, इट कैन फाइट एनी डैम थिंग ऑन दिस अर्थ, provided it has the proper environment which it should have. So this water helps to create proper environment in the body to be healthy. Now coming again onto the machine, this machine gives us 5 types of water. The very first type of water is of cooking and drinking, which we have seen the illustration now, and the second type of water which we get from this machine is beauty water, which has a pH of 4.5 to 6, which is great for our hair and skin and also for the plants. The third type of water which we get from this machine is clean water, that is 7 pH of water, which is used for allopathy medication as well as for the baby formula. दाल का पानी, सार्लैक जो हम छोटे बच्चों को पानी के माध्यम से खाना देते हैं उसके लिए. Fourth type of water which we get from this machine is 2.5 pH of water, which is very strong acidic water, and FDA says this thing कि the pH below 2.7, no bacteria, microorganism, virus, MRSA, fungus survive below 2.7 pH, and this is 2.5 pH of water, used for external use, used as a sanitizer, used as a disinfectant, also used for the fungal and the bacterial infections onto the outer skin. सोरायसिस, एक्जिमा, गैंग्रीन, ऐसे जो तकलीफें, ऐसी जो बीमारियां हैं जिनका हमारे एलोपैथी में भी कोई अच्छा सा अभी तक हमको ट्रीटमेंट मिला नहीं है, फाइनली वी मूव ऑन टू द स्टेरॉइड्स, तो उससे बचने के लिए दिस 2.5 वाटर इज वेरी इफेक्टिव. एंड नाउ मूविंग अहेड टू द फिफ्थ टाइप ऑफ वाटर. अभी पानी तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया. अभी इसका जो पांचवें तरीके का पानी है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन वाटर, व्हिच इज 11.5 pH. दैट वाटर हैज द पावर टू इमल्सिफाई द ऑयल. ये अभी हम सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग जो कुछ भी आजकल खा रहे हैं, दाल चावल जो भी मार्केट से लेके आते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, they all are being adulterated. Some sort of adulteration is being done to them, either pesticides, herbicides, colors, polishing, है ना, कुछ ना कुछ उस पे किया हुआ रहता है. तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आई हैव दिस मस्टर्ड ऑयल. व्हाई मस्टर्ड ऑयल? क्योंकि ये कोई भी एडल्ट्रेशन है ना, इन सब में एक चीज कॉमन है, समथिंग इज स्टिकी, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर में ठहरा रहता है. अदरवाइज इट वुड हैव बीन वॉश्ड आउट इन द रेन और इट हैज बीन ब्लोन आउट इन द एयर, पर ऐसा पॉसिबल होता नहीं है. रीजन इज दिस कि दीज ऑल आर बीइंग स्टिक्ड टू दिस food via oil. So I'll be taking a few drops of oil in this glass and a few drops of oil in this glass.
नॉर्मली व्हाट वी पीपल डू, हम हमारे घर पे फ्रूट्स वेजिटेबल लेके आते हैं, हम उसको बहुत अच्छे से धोने की कोशिश करते हैं। इन वन ग्लास आई विल बी पोरिंग दिस फिल्टर्ड वाटर, इसमें हम धोने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है सर कि पानी और ऑयल तो आपस में इमल्सिफाई होते नहीं है, मिक्स होते नहीं है, ऑयल विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो ये हमारे दिल की तसल्ली है कि हमने उसको साफ कर लिया है, अल्टीमेटली हमने उस पर डस्ट डर्ट निकाल दी है, एल्स हमने उस पे से कुछ एडल्ट्रेशन नहीं निकाल पाए। बट आई हैव दिस 11.5 pH of water which we get from this machine, and this water has this power कि ये ऑयल को भी ब्रेक कर देती है, it emulsifies the oil. You can see this. Is this visible, Preeti? Preeti? Yes. Is it visible? Yes, it is visible. ये नॉर्मल वाटर में मैंने ऑयल डाला था, तो ये वी ऑल नो कि ये मिक्स नहीं होता है, इमल्सिफाई नहीं होता है, लेकिन ये 11.5 में इट हैज बीन इमल्सिफाइड प्रॉपरली। तो अगर हम 20 से 30 मिनट के लिए अपने फूड आइटम को इसमें सोक करेंगे तो डेफिनेटली आवर फूड गेट्स एडल्ट्रेशन फ्री। सो दिस मशीन इज गोइंग टू हेल्प अस टू मेक आवर फूड आल्सो एडल्ट्रेशन फ्री, एज वेल एज दिस इज गोइंग टू मेक आवर वाटर वेरी हेल्दी। और जाना तो देखो सबको एक दिन होता है, पर जब तक है तब तक हम हेल्दी रहे, दिस इज द मेन पर्पस, एंड वाटर इज द बाय डिफॉल्ट सेटअप इन आवर लाइफ। So that is why we should drink the most healthy water which is available on this earth. And now to make you see, I have a few books also with me. This is Dr. Hiromi Shinya. He is the co-founder of Clonoscopy, and he has written many books: The Enzyme Factor, The Rejuvenation Factor, The Microbe Factor. 3 of them are with me, but he has written 15-20 books and all of them are bestsellers. और ये अपनी हर बुक के अंदर में when he talks about water, he says the world's best water we can find in the shape of only Kangen water. And again I'm having this one more book, Killing Cancer Not People, written by Robert G. Wright. Robert G. Wright is the director of American Anti-Cancer Institute, the International Research and Wellness Center. ये इन्होंने पूरा चैप्टर दिया है टू गेट क्योर एंड टू गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम कैंसर के ऊपर, कि ये पूरा चैप्टर है दिस इलेक्ट्रोलाइज्ड रिड्यूस्ड वाटर के ऊपर। एंड फाइनली पूरा चैप्टर में समझाने के बाद में ही हैज एंडोर्स्ड इन हिज बुक कि इफ ही इज गोइंग फॉर दिस he will be only going with the Energic company whose machine cost approximately $4,000, but worth every single penny of it. He has also termed this ionizer as the Rolls Royce of water. Now coming on to the machine and the equipment, this machine is ISO 13485 medical device certified. No other water equipment is ISO 13485 certified. Secondly, this machine is also gold seal by the Water Quality Association. To get this gold seal, for regular 18 months, more than 1700 tests are being performed on this machine to get this gold seal, and no other water equipment is being gold seal yet. And thirdly, there is a Japanese association of more than 6500 doctors and scientists who certifies this machine कि इस मशीन से एडल्ट्रेटेड डिजीज के प्रिवेंशन और क्योर दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। और अब हम इसके मॉडल्स पे भी चलते हैं। सॉरी, तो इसमें वी हैव 4 टाइप्स ऑफ मॉडल। गौरव, फर्स्ट आप प्लीज पूछ लीजिए अगर कोई क्वेश्चंस है उनके, तो किसी भी रिलेटेड आपके लिए। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल डन फ्रॉम माय साइड। जी संधू सर, any question from your side? Any question from Vijaya ma'am? Please, if there is any question, you can ask me. None so far. You explained it beautifully.